Hello students, I am Prakati Kalambe welcomes you all on my channel which is for bifocal banking. Today we are going to study the functions of commercial banks. Banks perform various functions and provide various services to the customers. These functions are divided into two parts, that is primary functions and secondary functions. Primary function includes accepting deposit, advancing loan, and the third is discounting of bills of exchange. And secondary functions include general utility services and agency services. Okay. The first, accepting deposit. Bank's main role is to accept deposit from public. Okay. In the definition of bank, we have already learned that banking means accepting for the purpose of lending. Okay. So the main or important role of bank is to accept the deposit from public and give them interest on it. A bank's strength is depend on the deposits in the bank. Okay, जितने भी बैंक में डिपॉजिट है उतनी ही बैंक की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. Okay, so the bank accept deposit or bank receive the deposit in four types. The first is saving bank account, current bank account, recurring bank account, and the last is fixed deposit account. Okay, let's see the first type, saving bank account. Saving account opened by mostly the salaried person. Okay, saving account mostly open किया जाता है salaried person जिनको इनकम रेगुलरली मिलती है, वो मंथली हो, ईयरली हो, क्वार्टरली हो, रेगुलर बेसिस पे जिनको इनकम मिलती है मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं. ओके. सेकेंड, द सेविंग अकाउंट हेल्प टू इम्प्रूव द सेविंग हैबिट्स ऑफ द पीपल. नाउ कैसे सेविंग अकाउंट हेल्प करता है टू इम्प्रूव द सेविंग हैबिट्स. ओके, लोगों को जितना भी इनकम होता है उस इनकम में से कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट वो क्या करते हैं, एज अ सेविंग बैंक में डिपॉजिट करते हैं. ओके, एंड बैंक इसके ऊपर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है. सो इन दैट वे सेविंग अकाउंट हेल्प टू इम्प्रूव द सेविंग हैबिट्स ऑफ द पीपल. ओके, देयर इज नो restrictions on the deposit of amount in the account. Okay, while depositing the amount in the saving account, there is no restrictions. You can deposit every day or every week or every month, but there is a restrictions on the withdrawal of amount. Okay, there is a restriction that means you can withdraw only 4 times in the month or only 3 times in the month. Okay, आप every month 3 times या 4 times ही withdraw कर सकते हैं. अगर आप everyday withdraw करोगे तो वहां पे वो अलाउड नहीं है. ओके, इन द सेविंग अकाउंट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिपॉजिट बट देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ विड्रॉल. ओके, विड्रॉ मीन्स टू ड्रॉ द मनी, बैंक से मनी विड्रॉ करना, बैंक से मनी निकालना, इट इज अ विड्रॉल. ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय बैंक बिटवीन 4% to 5%. ओके, जो डिपॉजिट बैंक में आप रखते हो दैट इज सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट आप बैंक में रखते हो, उसके ऊपर आपको 4 to 5% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है बाय द बैंक. ओके, मनी फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी विड्रॉ बाय चेक और बाय विड्रॉल स्लिप. इन मोस्ट केसेस सेविंग बैंक अकाउंट विड्रॉल स्लिप प्रोवाइड करता है टू विड्रॉ मनी. ओके, मोस्टली विड्रॉल स्लिप प्रोवाइड की जाती है. चेक ऑन डिमांड आपको मिलता है. इन केस अगर आपने चेक की डिमांड की आपको चेकबुक प्रोवाइड किया जाता है. अदरवाइज in the most cases withdrawal slip is provided by bank to withdraw the money from the account. Okay, other banking services are also provided to saving bank account holders. Okay, if you are the saving bank account holder you get the credit card facility, debit card facility, that demand draft facility and many more. Okay, बैंक जो basic services provide करता है उसके साथ बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐसे अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है टू द सेविंग बैंक अकाउंट. ओके, क्लियर. द सेकेंड टाइप इज करंट अकाउंट. द फर्स्ट, करंट अकाउंट मोस्टली ओपन बाय द बिजनेसमैन, फर्म, कंपनी एक्सेट्रा. ओके, मोस्टली करंट अकाउंट बिजनेसमैन ओपन करते हैं. ओके, या फर्म जो जॉइंट अकाउंट होल्डर होगी या कंपनी जिनके नाम पे है ऐसे पर्सन क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओपन किया जाता है. Okay, there is no restrictions on the number and the amount of withdrawal. Okay, saving account में हमने देखा there is a restrictions of withdrawal but there is no restrictions of depositing. Okay,
बट इन द करंट अकाउंट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन बोथ. आप विड्रॉ भी जितने टाइम चाहे कर सकते हो और डिपॉजिट भी जितना टाइम चाहे उतना कर सकते हो. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस बिकॉज करंट अकाउंट मोस्टली यूज बाय द बिजनेसमैन. ओके, और बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, डे टू डे टर्नओवर होता है. सो वहाँ पे बिजनेसमैन के लिए नो रेस्ट्रिक्शंस. वो डिपॉजिट भी कर सकते हैं, एवरीडे वो डिपॉजिट भी कर सकते हैं और एवरीडे वो विड्रॉल भी कर सकते हैं. ओके, द थर्ड इज कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन इन दिस अकाउंट. ओके, कैश क्रेडिट इट इज स्मॉल टाइप ऑफ लोन. ओके, एक शॉर्ट पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, एक स्मॉल अमाउंट प्रोवाइड की जाती है टू द पीपल और टू द बिजनेसमैन which is repayable after certain period with the interest. Okay, and the overdraft facility means you have facility or you have right, you can withdraw more than your balance in the account. Okay, आपके अकाउंट में भले ही पैसा नहीं है बट एक सर्टेन लिमिट तक आप विड्रॉ कर सकते हो. वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको बैंक प्रोवाइड करेगी और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ओके, टू द बैंक. इट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट दैट इज ओवरड्रॉइंग फ्रॉम योर अकाउंट. आपके पास जितना बैलेंस है वो बैलेंस के ऊपर आप विड्रॉ कर सकते हो एंड जो रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको बैंक को रिटर्न करनी पड़ेगी आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड विद द इंटरेस्ट. ओके, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी दैट मीन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन टू ओनली करंट अकाउंट. ओके, सिर्फ करंट अकाउंट को ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. द नेक्स्ट इज मोस्टली नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द करंट अकाउंट. ओके, यहाँ पे मोस्टली नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता. बट सम बैंक्स प्रोवाइड मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं. सो व्हाई देयर इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट और व्हाई देयर इज अ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट? बिकॉज करंट अकाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है विड्रॉल में और डिपॉजिटिंग में. ओके, इन केस अगर आप बैंक में कुछ अमाउंट रख रहे हो, बैंक वो अमाउंट बैंक को डिपॉजिट का क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है. या सेकेंड इज बैंक इन्वेस्टमेंट्स करती है. अगर बिजनेसमैन को या कोई भी करंट अकाउंट होल्डर को ऐसी फैसिलिटी है कि जो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल और नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट्स, बैंक कैन नॉट यूज देयर मनी फॉर द इन्वेस्टिंग पर्पज और बाय गिविंग फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग लोन और ग्रांटिंग लोन. सो देयर इज अ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सेविंग अकाउंट में आप एक स्पेसिफिक पीरियड, आप एक शॉर्ट पीरियड के लिए बैंक के पास पैसा रख सकते हो, इसलिए बैंक आपको एक मिनिमम अमाउंट इंटरेस्ट रेट पे करती है. ओके, इन द फिक्स डिपॉजिट आप फिक्स पीरियड के लिए बैंक के पास मनी डिपॉजिट करके रखते हो, इसलिए वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन करंट अकाउंट एंड मोर देन सेविंग अकाउंट. ओके, चेकबुक इज गिवन इन दिस अकाउंट. ओके, करंट अकाउंट में कंपल्सरी चेकबुक प्रोवाइड किया जाता है. अगर इन केस ऑफ विड्रॉल, अगर आपको विड्रॉ करना है फ्रॉम द करंट अकाउंट, यू हैव टू यूज द चेक्स. यू कैन नॉट यूज विड्रॉल स्लिप्स. ओके, विड्रॉल स्लिप ओनली प्रोवाइड टू द सेविंग अकाउंट. क्लियर, समझ में आया? द नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स customer can deposit amount in the multiple of 5, 10 every month on the regular basis. Okay, recurring that means certain amount you have to deposit in the account on the regular basis. Okay, for example मैंने बैंक में 2000 रुपीज का रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट ओपन किया. दैट मीन्स एवरी मंथ के स्पेसिफिक डेट पे आई हैव टू डिपॉजिट 2000. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 ईयर के लिए रिकरिंग डिपॉजिट ओपन किया है ऑफ द अमाउंट 2000. ओके, एवरी मंथ फॉर द 1 ईयर आई विल डिपॉजिट 2000. ओके, हर महीने में मैं 2000 ऐसे एक साल के लिए मैं क्या करूंगी, डिपॉजिट करूंगी. इट इज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. Rate of interest given in this type of account is favorable than the saving account. Okay, एवरी मंथ आप 2000 रुपए 2000 रुपीज अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो या सर्टन अमाउंट ऑफ बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तो वो सर्टन अमाउंट बैंक कैन यूज फॉर द लोन पर्पज और फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज. सो देयर इज अ फेवरेबल इंटरेस्ट रेट. दैट मीन्स द इंटरेस्ट रेट इज मोर देन सेविंग अकाउंट. इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इट इज मोर देन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट. क्लियर? Mostly recurring account is used by the person who want to meet the big expenses in future. Okay, for example after 1 year मुझे abroad जाना है for the study. Okay,
उसके लिए अगर मुझे पैसा जमा करना है तो एवरी मंथ में 10,000, एवरी मंथ में 50,000 क्या करूँगी, अकाउंट में डिपॉजिट करते जाऊँगी. एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे क्या मिलेगा, एक लमसम अमाउंट मिलेगी. ओके, सो देयर इज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. At the expiry of the period, customer get his principal amount with the interest rate. Okay? अभी मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 ईयर का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बना है तो एट द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड दैट मीन्स आफ्टर 1 ईयर आई विल गेट द प्रिंसिपल अमाउंट. दैट मीन्स मैंने जो 2000 एवरी मंथ डिपॉजिट किए वो 2000 इंटू 12 मंथ दैट इज 24,000 मुझे मिलेंगे विद द स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट. ओके, रिकरिंग डिपॉजिट कैन ओपन बाय द सिंगल पर्सन ओपन कर सकता है, बाय जॉइंटली और जॉइंट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं. इट ऑल्सो कैन बी ओपन बाय माइनर. ओके, व्हाट इज मीन बाय माइनर, द पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18. ठीक है, 18 एज के बिलो जो पर्सन है वो भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं बट विद द साइन ऑफ गार्डियन. गार्डियन मीन्स पेरेंट्स. ठीक है, पेरेंट के कंसर्न से, पेरेंट के कंसेंट से वो क्या कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं. क्लियर, दिस इज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. दिस डिपॉजिट कैन बी कैंसल बाय द कस्टमर बिफोर द ड्यू डेट. ही कैन गेट हिज 90% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 ईयर का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बनाया है बट आफ्टर द 6 मंथ्स आई नीड द मनी. ओके, मुझे अर्जेंटली मनी चाहिए. इन दैट केस I can cancel my recurring deposit, but I only get 90% of principal amount. Okay, मुझे क्या मिलेगा, 90% ही principal amount मिलेगी, मुझे पूरे अमाउंट नहीं मिलेगी. वो जो remaining 10%, the remaining 10% will be the charge or the penalty to the bank. Okay, बैंक को वो penalty मिलेगी, बैंक को वो charges मिलेंगे because before the maturity period I am cancelling my recurring deposit. Okay, clear? This is a recurring deposit account. And the last is fixed deposit account. In the fixed deposit account, amount is deposited for the fixed period. Okay. So for example, I have some amount, that means for example I have 1 lakh rupees. Okay. और वो 1 lakh rupees मैं क्या करूँगी, बैंक में डिपॉजिट करूँगी for the 5 years. Okay. This is my fixed deposit account. Okay. One certain amount मैंने fixed period के लिए अगर बैंक में डिपॉजिट की, it is a fixed deposit account. No withdrawal is allowed between that fixed period. Okay, वो fixed period में, वो 5 years के period में मैं कोई भी withdrawal नहीं कर सकती. वो 1 लाख में से मैं कोई भी amount withdraw नहीं कर सकती. If customer want to cancel the fixed deposit before the maturity period, he can cancel it. Okay, जैसे recurring deposit में हमने देखा कि अगर हम लोग recurring deposit cancel करते हैं we get only 90% amount. Okay, सेम इन द केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट. इन केस अगर 5 इयर्स का जो पीरियड है उसके पहले अगर मैंने एफडी कैंसिल की तो आई विल गेट ओनली सम अमाउंट. ओके, सम अमाउंट विल डिडक्ट फ्रॉम इट बाय बैंक. ओके, कस्टमर कैन रिन्यू द फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट कैन नॉट ट्रांसफर. ओके, सेविंग अकाउंट में जैसे पासबुक मिलता है वैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट मिले. Fourth, this deposit does not get checkbook and passbook facility. Okay, fixed deposit receipt में अगर आपको fixed deposit receipt मिल रही है, so there is no facility of checkbook and passbook. Okay, checkbook there is a no withdrawals is allowed. Okay, वहाँ पे withdrawal allowed नहीं है, so checkbook का कोई भी use नहीं होगा. Okay, and the passbook facility is not necessary because you are getting the fixed deposit receipt. Okay. Now, this is the features of fixed deposit account. I hope you all understand the types of accounts, that means saving deposit, current, recurring deposit and the fixed deposit. In the next video, we will study the second type or second point of primary functions. Okay, thank you.